ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 2 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈੱਟ ਆਫ ਬੁੱਕ ਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਵੈਂਚਰ, ਈਚ ਕੋਵੈਂਚਰ ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਅਦਰ ਕੋਵੈਂਚਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੋਵੈਂਚਰਸ ਨੇ X, Y ਔਰ Z। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੇ, ਜਿਵੇਂ X ਹੈ, X ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਪਲਸ Y ਔਰ Z ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ Y ਹੈ ਤਾਂ Y ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ X ਔਰ Z ਦਾ ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ Z ਹੈ, Z ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ, X ਔਰ Y ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵੈਂਚਰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਬਣੇਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਦੂਜਾ ਬਣੇਗਾ ਕੋਵੈਂਚਰ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਅਸਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਸ ਨੂੰ ਅਸਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਹੈ ਡੈਬਿਟ all expenses and losses, credit all incomes and gain। ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ। ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ ਕੋਵੈਂਚਰ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ है ना। जो भी चीज़ रिसीव की जाएगी किसी पर्सन के द्वारा और डेबिट हो जाएगी, जो भी चीज़ पे की जाएगी या दी जाएगी, गिव की जाएगी, तो वो हो जाएगा क्रेडिट द गिवर करके क्रेडिट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ा पता होंगियां तो तुसी ट्रांजैक्शनस नूं बहुत ईजली पोस्ट कर लोगे। हुण इन्ना ही याद रखना है कि 2 अकाउंट बनूगे, जॉइंट वेंचर ते कोवेंचर दा पर्सनल अकाउंट, ते उन्हां दे बेसिक नेचर की ने। हुण आ जाओ पहली ट्रांजैक्शनस दे उत्ते कि अगर जॉइंट वेंचर के उत्ते कोई भी परचेजिस की गई है या कोई भी एक्सपेंसिस इंकर किए गए तो एंट्री की पऊगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट कर दोगे, क्योंकि परचेजिस की है साडा एक तरह का एक्सपेंस ही है, पैसा जा रहा है ना, वो उत्ते खर्चा किया जा रहा है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में करोगे डेबिट। जे परचेजिस कैश के उत्ते है तो कैश अकाउंट में कर दोगे तुसी क्रेडिट, क्योंकि कैश अकाउंट की है साडा रियल अकाउंट है ना। रियल अकाउंट का रूल की होंदा है, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज़ आउट। परचेजिस के वास्ते कैश तुहाडे हत्थों जा रहा है, इस करके तुसीं उहनूं क्रेडिट कर दोगे। उस तो बाद है ये हो गए परचेजिस, स्पैसीफिक इत्थे लिखा गया परचेजिस। बट अगर कोई एक्सपेंसिस होवे, मान लो फ्रेट एक्सपेंसिस हो, कैरेज इनवर्ड होवे, कैरेज आउटवर्ड होवे, कोई भी एक्सपेंसिस होवे, ओदी एंट्री भी सेम ही आनी है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिस की होंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट के विच डेबिट होगे तो एक्सपेंसिस नूं कैश के विच पे किया जाएगा, तो कैश अकाउंट साडा क्रेडिट हो जाएगा। उस तो बाद है जे परचेजिस नूं तुसीं क्रेडिट के उत्ते कीता, मतलब की है उधार के उत्ते कीता है, तो तुसीं जॉइंट वेंचर अकाउंट नूं डेबिट करोगे, टू बैंक अकाउंट करोगे, नहीं तो तुसीं इत्थे क्रेडिटर्स अकाउंट भी कर सकते हो। जे ऑप्शन दे विच क्रेडिटर्स अकाउंट गिवन है ना, तां भी साडा आंसर सही है। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परचेजिस साडा एक्सपेंस है, इस करके आप उन्होंने डेबिट कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट इत्थे आप क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप परचेजिस है जो उधार के उत्ते कीतियां है, या फिर तुसी किसी क्रेडिटर का नाम भी लिख सकते हो, जिदा कोई भी नाम अगर गिवन होवे XYZ करके, तो वह भी तुसी लिख सकते हो, क्योंकि वो साड़ी की बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस हो। नेक्स्ट देखो, ईच कोवेंचर ऑल्सो डेबिट जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ अदर कोवेंचर ऑन द अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर। ये एंट्री की है, मान लो 2 कोवेंचर सीगे A और B। ठीक है, वैसे मैं अगे पंजाबी दे विच भी डिस्क्राइब किया कि तुहानूं अंडरस्टैंड हो जाए ये चीज़ है कि B ने जॉइंट वेंचर के उत्ते कोई खर्चा कर दिता, मान लो उन्हें कुछ परचेजिस कर लेती। ठीक है, तो ये चीज़ ए रिकॉर्ड किवें करेगा, ए रिकॉर्ड किवें करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू डेबिट कर देगा
क्योंकि एक्सपेंस है, खर्चा होया परचेजेस है। बी दे परसनल अकाउंट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ, ਉਹਨੇ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਰਿਮੈਂਬਰਡ that it is possible only, but ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਵੈਂਚਰ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇੰਕਰਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਟੂ ਅਦਰ ਕੋਵੈਂਚਰ। मान लो ए और बी वाला ही एग्जाम्पल, ए और बी, जब बी ने कुछ खर्चा किया तो बी की ये जिम्मेवारी है कि ए नू दसे कि इन्हें कोई खर्चा किया है, ताई तो जाके वो रिकॉर्ड करे। अगर उन्होंने पता ही नहीं होएगा कि बी ने खर्चा किया है तो ये अपने अकाउंट्स के विच ट्रांजैक्शंस पाएगा किवें और उन्होंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसपेरेंसी लैके किवें आएगा अकाउंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ प्रॉफिट ਇਹਦੇ ਨਾਲ गलत हो जाएगा। ये याद रखना जरूरी है। ये चीज़ उदों ही होएगी, ये ट्रांजैक्शन उदों ही पाई जाएगी जे दूसरे कोवेंचर ਨੂੰ ਇਹਦੇ बारे इन्फॉर्मेशन ਦਿੱਤੀ जाएगी। जे इन्फॉर्मेशन ही नहीं ਦਿੱਤੀ जाएगी तो उन्होंने पता ही नहीं है तो वो एंट्री पाएगा ही नहीं। ठीक है, अगे देखो ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ लॉजिक की है कि मान लो जो कोवेंचर ए नू पता लगा कि कोवेंचर बी ने कोई खर्चा किया है तो ए कोवेंचर ए रिकॉर्ड किवें करे, जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट कर देगा क्योंकि एक्सपेंस है, और जॉइंट वेंचर अकाउंट नॉमिनल है तो उन्होंने एक्सपेंस करके आप डेबिट कर देंगे। कोवेंचर अकाउंट नू बी नू जिन्हें खर्चा किया उन्होंने आप क्रेडिट कर देंगे क्योंकि क्रेडिट का गिवर बन जाएगा इत्थे। ठीक है, रूल इत्थे लिखे ने, एक बार रीड करना। हुण इहदे पिछे दा की पॉइंट की है, ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਤਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕੋਵੈਂਚਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਗੇ ਕਿ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਕਸੈਟਰਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਇਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਕੋਵੈਂਚਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊ। ਉਹਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਚਾ ਐਕਸਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਗਲਤ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੌਜਿਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿੰਗ ਅਦਰ ਕੋਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਕੋਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਵੈਂਚਰ ਮੰਨ ਲਓ ए ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੋਵੈਂਚਰ बी ਨੇ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ए ਵੈਂਚਰ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖਰਚਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਗਿਵਰ ਆਫ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਇਸ ਲਈ ਬੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਵੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਵੈਂਚਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C, ਵੈਨ ਗੁੱਡਸ ਆਰ ਸੋਲਡ ਔਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚੇ ਗਏ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੈਸ਼ ਕਦੋਂ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸੇਲਸ ਹੋਈਆਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਸੇਲਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੂ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਅਦਰ ਕੋਵੈਂਚਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਕੋਵੈਂਚਰ ਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਹੈ ਬਾय द ਕੋਵੈਂਚਰ द ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਵੈਂਚਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡੈਬਿਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡੈਬਿਟ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, आई होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है। जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट इस करके किया गया क्योंकि कमीशन खर्चा है, तो टू कमीशन अकाउंट कर दोगे। अगे देखो,
इफ़ द कमीशन इज़ रिसीवेबल बाय द अदर को वेंचर, अगर कमीशन किसी होर को वेंचर ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ तो जॉइंट वेंचर अकाउंट तो डैबिट होएगा, बट ਉਹਦਾ पर्सनल अकाउंट की कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, आगे देखो। समटाइम्स remittance is received by one co-venture by getting the bill discounted। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ A ਔਰ B ਦੋ co-ventures ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ए ने पैसा इन्वेस्ट किया जॉइंट वेंचर दे विच, ये दोनों मिल के जॉइंट वेंचर के अंदर आए तो ए ने पैसा इन्वेस्ट किया। ए की होगा, जिन्हें पैसा इन्वेस्ट किया वो की बनूगा, ड्रॉअर बनूगा। ठीक है, कि वो बिल बनाएगा। हुण वो चाहता है कि जिन्ना मैं पैसा इन्वेस्ट किया मैनू फाइनल सैटलमेंट की वेट ना करनी पवे, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दूसरे को वेंचर तो एक्सैप्ट करवा ला कि ये मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैनू पेमेंट जल्दी मिल जाए तो मैं जाके वो बैंक के डिस्काउंट करवा लवां। वो हो जाता साडा बिल ऑफ एक्सचेंज की बिल डॉक्यूमेंट है। ए हो जाऊगा ड्रॉअर जिन्हों पैसा मिलना है, बी हो जाऊगा जिदे तो एक्सैप्ट करवाऊगा वो एक्सैप्टर हो जाऊगा। ये ट्रांजैक्शन वो है कि जो ए ने इन्वेस्टमेंट की वो चाहता है कि मैनू जी सैटलमेंट लई वेट ना करना पवे पूरा टाइम कि जॉइंट वेंचर जो खत्म होएगा मैनू वो फाइनल सैटलमेंट मिलू। वो चाहता है मैनू जल्दी तो जल्दी रिमिटेंस मिल जाए। रिमिटेंस का मतलब की है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज लैके बैंक को जाएगा, बैंक उन्होंने डिस्काउंट करके पैसा दे देगा, उन्होंने रिमिटेंस बोलिया जाता है। ठीक है, हुण इहदे विच आपां एंट्रीज किद्दां पानी है, पहले तो रिमिटेंस समझ लो, जो भी एक्चुअल कैश रिसीवड होना है ड्रॉअर नू। ठीक है, जो भी उन्हें पैसा इन्वेस्ट किया वो बदले, तो ये कैश डायरैक्टली नहीं आता अदर को वेंचर वालों। बिल बनाया तो वो बिल बैंक को लैके जाना पऊगा, तो वो बिल डिस्काउंट करवाना पेगा। ठीक है, पहला उस बिल नू एक्सैप्ट करवाना पऊगा अदर को वेंचर तो बिल जड़ा है वो बैंक कुछ पैसे कट के पैसा दे दूगा। ठीक है, हुण इदा क्यों किया जाता है, क्योंकि जड़ा को वेंचर है ना, उन्हें पैसा इन्वेस्ट किया तो वो वेट नहीं करना चाहता फाइनल सैटलमेंट वास्ते, वो जल्द तो जल्द पेमेंट रिसीव करना चाहता है, तो वो बिल बना देता है, उन्होंने बोलते हैं आप रिमिटेंस। ठीक है, तो वो जो डॉक्यूमेंट होंगे वो बिल ऑफ एक्सचेंज होंगे, तो जोड़ा भी वो उत्ते डिस्काउंट मतलब जो भी बैंक है पैसा कट के मान लो 10,000 का सीगा। ठीक है, तो ये बिल लैके ये गया बैंक को, बैंक ने उहदे विचों 1000 चार्जिस कट ले, डिस्काउंट उन्होंने बोलते हैं डिस्काउंटिंग द बिल, 1000 चार्जिस कट के 9,000 रुपया दे दिता ए नू। तो जिहड़ा 1000 होएगा जॉइंट वेंचर का की होएगा, लॉस होएगा, तो ये सारे को वेंचर्स आपस दे विच वंडूगे। ठीक है, आई होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है। नैक्सट देखो हुण ट्रांजैक्शनस, तो जिन्हें बिल बनाया वो हो जाऊगा ड्रॉअर, मतलब जिन्हों पेमेंट मिलनी है, तो जिन्हें बिल नूं एक्सैप्ट किया कि ठीक है तू बिल बनाया आप तेनों पेमेंट दे देंगे, वो हो जाएगा एक्सैप्टर। हुण इन्हां दोनों के बुक्स विच अलग अलग एंट्री आएगी। पहला ड्रॉअर की बुक के पहली एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचर अकाउंट। हुण बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू अदर को वेंचर अकाउंट टू क्रेडिट किया जाएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट की है, मेरे एसेट है, तो मैनू पैसा आना है, ड्रॉअर नू पैसा मिलना है, ए नू जिन्हें बनाया है ए नू पैसा मिलना है, तो डेबिट वट कम्स इन आ जाएगा, तो अदर को वेंचर ने पैसा देना है जॉइंट वेंचर का। ठीक है, ए नू क्योंकि ए ने पैसा इन्वेस्ट किया सी तो वह पर्सनल अकाउंट की बन जाएगा, क्रेडिट बन जाएगा, क्योंकि वो की हो जाएगा क्रेडिट द गिवर, उन्हें एक्सैप्टेंस देती। उस तो बाद है जो ए उस बिल नू लैके बैंक दे विच गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने पैसा आ गया। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये लॉस है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा। ओके, नैक्सट देखो जो भी डिस्काउंट का अमाउंट होएगा, मान लो मैं जो उपर एग्जाम्पल दिता 1000, वो जॉइंट वेंचर का लॉस है, तो उन्होंने आप जॉइंट वेंचर अकाउंट के ट्रांसफर करांगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करके क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, टू डिस्काउंट अकाउंट करके। ठीक है, पहली एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल की, दूजी आएगी बिल्स नू डिस्काउंट करवाउण दी, तीजी आएगी उस डिस्काउंट नू ट्रांसफर करन दी। नैक्सट देखो एक्सैप्टर की बुक के अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट करोगे। ठीक है, जो ड्रॉअर है वह अकाउंट डेबिट करोगे, टू बिल्स पेबल अकाउंट करोगे, उन्हें एक्सैप्टेंस दे दी। दूजा बिल नू डिस्काउंट करवाउण वास्ते कोई भी एंट्री एक्सैप्टर की बुक के नहीं आएगी क्योंकि वह ये नाल कोई लेना देना नहीं है, जिन्हों पेमेंट मिलनी है वो बिल नू लैके बैंक जाएगा। नैक्सट है थर्ड, जोड़ा वो डिस्काउंट होया है वो लॉस है जॉइंट वेंचर का, वो आपस के सारे जोड़े को वेंचर्स आ वो वंड लूगे, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होएगा, टू अदर को वेंचर अकाउंट हो जाएगा। आई होप तुहानूं ये ट्रांजैक्शन क्लीयर है। नैक्सट देखो ट्रांजैक्शन है अनसोल्ड स्टॉक की, की को वेंचर के उत्ते कुछ स्टॉक है जोड़ा वो अनसोल्ड रह गया, अगर उन्होंने एक को वेंचर ने लै लिया तो आप एंट्री की पावांगे गुड्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट कर देंगे। ठीक है,
इफ़ द अनसोल्ड स्टॉक इज़ टेकन बाय अनदर कोवेंचर, किसी होर कोवेंचर ने ले लिया, तो जिस कोवेंचर ने लिया ਉਹਦਾ अकाउंट डेबिट कर देंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट कर देवांगे। ठीक है, मान लो ए और बी, ठीक है, तो इत्थे ए ने ले लिया तो ए की रिकॉर्ड करूँगा गुड्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। बट अगर बी ने ले लिया तो ए किवें रिकॉर्ड करूँगा बी की ट्रांजैक्शन नू अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ओके, नैक्सट देखो, जो हुण आपां सारी ट्रांजैक्शनस पाई, ठीक है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट के उन्होंने ट्रांसफर किया, फिर जो बैलेंस आएगा ना जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट क्रेडिट करके, वो की रिप्रजेंट करता है, प्रॉफिट और लॉस रिप्रजेंट करता है। जो शेयर कौन करूँगे, सारे को वेंचर्स करूँगे इन एग्रीड रेशियो, अगर एबसेंस है किसी एग्रीमेंट की तो इक्वली करूँगे। हुण जे प्रॉफिट है तो एंट्री की आऊगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट किया जाएगा, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया जाएगा ओदे अपने शेयर के नाल। मतलब अगर ए और बी है, ए एंट्री पोस्ट कर रहा है तो इत्थे टू P&L अकाउंट करके ए दा शेयर के नाल अमाउंट आएगा, तो अदर को वेंचर्स दे विच बी दे शेयर के नाल अमाउंट आएगा। ठीक है, जे हुण बी रिकॉर्ड कर रहा है तो जॉइंट वेंचर वही आएगा, बट जो P&L च वो बी दे अमाउंट नाल आएगा, तो ए दा अमाउंट चला जाएगा अदर को वेंचर दे विच। अगर लॉस हुंदा है जॉइंट वेंचर के उत्ते लॉस गिवन है तो वो एंट्री यदि रिवर्स हो जाएगी। सारिया चीज़ां उदा ही पाऊगियां, बस एंट्री रिवर्स हो जाएगी, अमाउंट उदा ही पैना। अगे देखो, अगर बैलेंस बचता है पर्सनल अकाउंट के विच, क्योंकि आप पर्सनल दो अकाउंट बना रहे हैं ना, जॉइंट वेंचर तो पर्सनल अकाउंट, जे पर्सनल अकाउंट के विच कोई बैलेंस दिखता है तो वो बैलेंस की है, या तो अमाउंट ड्यू टू हिम, या तो उन्होंने देना है या उहदे तो लैना है किसी को वेंचर। सो ये ट्रांजैक्शनस ने ओदियां, ठीक है। सैकेंड मैथड दियां जो साडे कोल है कि अगर सैपरेट सैट ऑफ बुकमेंट ना की जाए, उहदे विच दो अकाउंट्स बनूगे, जॉइंट वेंचर ते पर्सनल अकाउंट, ते हर एक ट्रांजैक्शन आपां देख लीए किवें किवें रिकॉर्ड की जाएगी, उहदे पिछे दे रूल। वैसे ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इन्ना पूछा जाएगा कि किन्ने मैथड्स है जॉइंट वेंचर दे, हर मैथड के अंदर केड़ा अकाउंट मेनटेन किया जाता है, तो इन्ना भी पूछ सकते हैं कि उस अकाउंट का नेचर की है। ठीक है, जो नेचर पता लग गया, ट्रांजैक्शनस अपने आप ही पता लग जानी है। सो ये सी अज की अपनी क्लास। आई होप तुहानूं क्लास वधिया लगी होए। जे तुहानूं क्लास वधिया लगी होए, चैनल नूं सबसक्राइब करना और वीडियो नूं वध तों वध शेयर और लाइक जरूर करना। ये नाल मेरा टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर रेगूलर अपडेट्स, प्लस अपना फीडबैक मैनूं जरूर दिया करो कमेंट सैक्शन दे विच। मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच नैक्सट टॉपिक दे नाल। थैंक यू सो मच।